So now, so now we will study the order of a matrix. Okay? The number of rows and columns in a matrix describe its order. The definition is, if a matrix has m rows and n columns, then we will say that it is of order m by n, and we have seen this in determinant also. Hmm? Suppose I write an example. The matrix is 2 1 0 4. This is the matrix. How many rows it has? It has two rows. One, two. Therefore, we will say two rows. How many columns it has? One, two. Therefore, we will say two columns, and we will write cross in between. So it will be the order of this matrix. We will say that this matrix is of order 2 by 2. Correct? Then you can write many examples. For example, you can see here A is equal to 2 1 3 4. It has two rows and two columns. Therefore, its order is 2 by 2. Right? Another example, suppose matrix B on your screen, 3 minus 1, 2, 4, 0, 5. This matrix, it has 1, 2. So it has two rows and it has 1, 2, 3, three columns. Therefore, 2 by 3. And remember, you will always write the row first. पहले आपको row लिखना है, बाद में column लिखना है. Therefore, this matrix will be called a 2 by 3. And you can see here rows and columns are not equal. यहाँ पर equal थे, but यहाँ पर equal नहीं है. इसीलिए मैट्रिक्स में अनलाइक डिटर्मिनेंट रोज एंड कॉलम्स कैन नॉट बी इक्वल ऑल्सो. इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. एंड वन मोर एग्जांपल यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. मैट्रिक्स सी, इट हैज थ्री रोज 1 2 3 एंड कॉलम्स आर 2, देयरफॉर 3 by 2. एंड रिमेंबर 2 by 3 एंड 3 by 2 बोथ आर डिफरेंट. दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है. यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2 by 3 है, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, while C is vertical matrix, ये 3 by 2 है. ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आई होप सभी को क्लियर हो गया रहेगा. ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स लर्न करेंगे. ठीक है. चलिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. यहाँ पे एक और हमने एग्जांपल दिया, मैट्रिक्स डी, 3 rows and 3 columns. So tell me, in these 4 examples which I have written on your screen, A, B, C, and D, which of the two matrices can be a determinant? कौन सी दो matrices है जो determinant बन सकती है? Can you tell which are those? Which of the two matrices can be a determinant? Yes, very good, right, correct. There are only two matrices which can be determinant, and those are first and last, that is A and B. ठीक है. B and C can never be a determinant. B और C determinant हो ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल है ही नहीं. तो अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट को लाइन से रिप्लेस किया तो भी ये डिटर्मिनेंट नहीं बनेगी. हाँ, अगर आपने यहाँ पर मैट्रिक्स ए में जो ब्रैकेट है उसको लाइन कर दिया तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट, और इसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो. मैट्रिक्स डी में अगर आपने ये ब्रैकेट को लाइन कर दिया तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा और इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, बट यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी. ठीक है, तो ये याद रखिए. ओके, नेक्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. वी विल मूव फॉरवर्ड. Next, now we will see very important the types of matrices. Matrices के types क्या हैं? Based on the order, based on the elements in the given matrix, we have many types of matrices. Those we will learn one by one. सभी जो है हम one by one learn करेंगे, and at the end I will ask you the questions. I will write an example, I will write a matrix, and you will tell me the type of that matrix. Very easy. Let's see. First matrix, row matrix. First type is row matrix. The definition is, if a matrix has only one row, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, कॉलम्स कितने भी हों, 2 3 4 5 6 7 डज नॉट मैटर, अगर सिर्फ सिंगल रो है तो उसे आप कहोगे रो मैट्रिक्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से क्लियर होगी बात. ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए बी यहाँ पे हमने लिखा है, ये मैट्रिक्स है. हाँ, हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये देखिए ब्रैकेट में. So how many rows you have in A? You have one row, therefore row matrix. यहाँ पर कितने रो हैं? One row, therefore row matrix. ठीक है. Tell me the order of A. ये जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर क्या रहेगा? चलिए बताइए. What will be the order of A? Order of A will be, it has one row, therefore 1. It has two columns, therefore 2. Therefore order of A will be 1 by 2, not 2 by 1. It will be 1 by 2. पहले हम रो को लिखते हैं.
ठीक है। सेम वे व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बी, बी का ऑर्डर क्या रहेगा, बी हैज 1 रो and 3 columns, so we will write 1 by 3, correct? So it has only 1 row, therefore we will have we will call them row matrix. Next, column matrix. If a matrix has only 1 column, किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक ही कॉलम है, रोज कितने भी हो 2 3 4 5 डज नॉट मैटर, तो आपको जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल यू कैन सी मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी हियर. I have written two matrices. It has only one column, one. B has only one column. Therefore, these are called column matrices. What will be the order of A? अब A का order क्या रहेगा? A has 1, 2 rows into A has 1 column, therefore 2 by 1. The order of A will be 2 by 1, and the order of B will be, yes, very good. It will be 3 by 1. It has 3 rows and 1 column, so 3 by 1. So very easy, the definition of column matrix. Next, now we will see the rectangular matrix. Very simple. जो name है वही definition है. The matrices which are similar to a rectangle, और rectangle में क्या होता है, length and breadth are not equal. So if a matrix has unequal number of rows and columns, अगर किसी matrix में rows और columns equal नहीं है तो उसे हम कहेंगे rectangular matrix. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, this matrix A, it has 1 row and 2 columns. इक्वल है क्या, नहीं है, therefore ये रेक्टेंगुलर है. B ये भी रेक्टेंगुलर है, A ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है. जो स्क्वायर शेप में नहीं होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी A B C etc. You can write many examples. बस आपके रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए. हाँ. So here matrix A has order 1 by 2, therefore it is rectangular. B का order क्या रहेगा? What would be the order of B? Here, what will be the order of B? B has 3 rows and 2 columns, therefore 3 by 2. Hence, it is rectangular. Okay. Similarly, C. What is the order of C? C has 2 rows and 3 columns. Please do not give the wrong answer. Be careful while giving the answers. Therefore, all these are rectangular matrices. I can write another example. Suppose I write the example matrix 2 1 0 4. Tell me, is it rectangular? क्या ये rectangular है? Is it a rectangular matrix? Answer is no. It is not rectangular. It is square matrix. ठीक है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हैं. तो हमारा नेक्स्ट टाइप वो ही रहेगा. क्या रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. तो लेट्स सी नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या रहेगा डेफिनेशन? If a matrix has equal number of rows and columns, then it will be called square matrix. For example, यहाँ पे आप देख सकते हो A का ऑर्डर क्या रहेगा? 2 by 2. B का ऑर्डर क्या रहेगा? 3 by 3. Therefore, both the matrices are square matrices. ठीक है, वेरी इजी. अगर आपके रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं हुए तो वो स्क्वायर नहीं होगी. तो जो डिटर्मिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है. जैसे आपने अगर ये ब्रैकेट को लाइन कर दिया तो यस, अभी आपका डिटर्मिनेंट बन गया. अब आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो. 3 2 - 1 4. व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? इसका वैल्यू क्या आएगा? प्लीज टेल. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? हमारा चैप्टर फिनिश हुआ ना, डिटर्मिनेंट. So what will be its value? Please calculate. Tell me the answer. Let's see who answers. Wrong answer, Prerna. Nanda is correct. Its answer will be 3 into 4 plus 2. That is equal to 14. Therefore, determinant will be 14. सभी का आंसर रॉन्ग है. वेरी वेरी बैड. Those who are given the answer 14 are correct. बाकी सभी रॉन्ग है. हमारा चैप्टर डिटर्मिनेंट हो चुका लर्न है. I am not going to explain that again. तो उसकी प्रैक्टिस करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी. मिस्टेक्स हो रहे हैं, योर प्रॉब्लम. मिस्टेक्स को दूर करना, कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स ना हो, ये आपका प्रॉब्लम है. प्लीज आपको ही करना है. आई कैन नॉट कम एंड टीच यू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन. वो आप स्कूल में लर्न कर चुके हो. नाउ नेक्स्ट, अब आगे जो टाइप्स आने वाले हैं, ऑल दोज टाइप्स विल बी सब टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस. स्क्वायर मैट्रिक्स के ही हम सब टाइप्स लर्न करने वाले हैं. सो नंबर 5, डायगोनल मैट्रिक्स. अब इसमें क्या होता है? इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होती है. तो इफ अ मैट्रिक्स हैज ऑल द नॉन डायगोनल. अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल होते हैं. एक तो ये वाला होता है, दिस वन, ये एक डायगोनल है. और दूसरा जो है वो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दिस वन, वो ये होता है. ठीक है. तो इसमें जो रेड डायगोनल है, जो हमने रेड से ड्रॉ किया है,
दिस रेड डायगोनल विल बी कॉल्ड मेन डायगोनल, इसे आप कहोगे मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। और जो ग्रीन वाला हमने ड्रॉ किया है इट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल। ग्रीन वाला डायगोनल किसी काम का नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है रेड डायगोनल, ठीक है, मेन डायगोनल। तो यहाँ पे क्या है कि इफ all the elements except main diagonal are zero, then the matrix is called diagonal matrix. Remember, rectangular matrices में diagonal नहीं होता, diagonal सिर्फ square matrices में होता है। तो अगर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखोगे क्लियर होगा, आपके ये दो मैट्रिसेस स्क्वायर हैं, ठीक है, मेन डायगोनल को छोड़ दीजिए, ये मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल, तो मेन डायगोनल को छोड़कर जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट मेन डायगोनल आर जीरो, सभी के सभी जीरो है। ये देखो जीरो जीरो, यहाँ पर भी देखो जीरो 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 जीरो, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, डायगोनल के ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। तो ऐसे जो मैट्रिसेस होते हैं उन्हें कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन ही उसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन राइट मेनी एग्जांपल्स। सपोज हम एग्जांपल लिखते हैं 2 1 0 0 3 4 0 0 5। टेल मी, इज इट डायगोनल? क्या ये डायगोनल है? इज इट डायगोनल मैट्रिक्स? प्लीज टेल यस और नो। Answer is no, it is not diagonal. Why? Just because of this number 1. इस 1 की वजह से ये डायगोनल आपने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों नंबर्स जो है ये नॉन जीरो है, आपको यहाँ पर जीरो चाहिए। अगर आपने यहाँ पर जीरो लेकर आ गया, अगर आपने यहाँ पर जो है लेकर आ गया जीरो, तो आपको जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आप यहाँ पे अब जीरो लेकर आ जाओगे जीरो जीरो, तो यस नाउ इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे सिक्स्थ टाइप, इट इज स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब जो स्केलर मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है, यानी इसमें मेन डायगोनल के नंबर्स होते हैं और बाकी सभी नंबर्स जीरो होते हैं। फिर डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें द मेन थिंग इज ऑल द एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल आर इक्वल और सेम। मेन डायगोनल के सारे ही नंबर इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते हो तो इन दोनों मैट्रिसेस में, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी में, जो डायगोनल के नंबर्स हैं वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे 2 और 1 है, यहाँ पे 3 1 -2 है, डिफरेंट है। therefore they are diagonal but they are not scalar। ये डायगोनल तो हैं बट स्केलर नहीं है। अब स्केलर मैट्रिक्स कैसे होंगे? तो यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए डायगोनल पर नंबर्स इक्वल है 3 3 और बाकी सभी नंबर जीरो हैं। यहाँ पर भी देखिए डायगोनल के नंबर्स इक्वल हैं 5 5 5 और सभी बाकी सभी नंबर्स जीरो हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन मोर एग्जाम्पल, सपोज हम लिखते हैं यहाँ पर 2 1 0 2। टेल मी, इज इट स्केलर? क्या ये मैट्रिक्स स्केलर है? यस और नो, क्या ये मैट्रिक्स स्केलर है? आपका आंसर रहेगा नो। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो डायगोनल के नंबर्स इक्वल है ना, डायगोनल के नंबर यहाँ पर सेम है, 2 और 2 है, तो ये तो स्केलर होनी चाहिए। तो अभी ये स्केलर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल मीन्स ऊपर और नीचे जीरो होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, तो डायगोनल नहीं है, इसलिए ये स्केलर भी नहीं होगी। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे। वी विल सी द नेक्स्ट टाइप। वैसे भी हम पीडीएफ शेयर करने वाले हैं, तो डोंट वरी। नेक्स्ट नंबर 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट, इसका मीनिंग होता है 1, ठीक है। यूनिट मीन्स 1, आइडेंटिटी मीन्स 1। तो इफ इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डायगोनल के सारे नंबर्स 1 हैं, इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अब ये बहुत ज्यादा स्पेशल मैट्रिक्स है, इसके लिए हम यूज करेंगे एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल लेटर हम यूज करेंगे और वो होगा आई। वी विल ऑलवेज डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय आई। यूनिट मैट्रिक्स को हम आई से ही डिनोट करेंगे, रिमेंबर दिस। अब आई जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक तो ये होता है 1 0 0 1 एंड सेकंड इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देख सकते हो कि all these two matrices are what? These are square matrices. These are diagonal also, ये diagonal भी हैं। These are scalar also, ये scalar भी हैं क्योंकि diagonal के numbers equal हैं। And they are unit matrices also because the diagonal के numbers 1 है, ठीक है।
तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे कहते हैं शॉर्ट में, इसको I2 भी कहते हैं, I2, और इसे शॉर्ट में जो है I3 भी कहते हैं, I3। तो आप ये याद रखिए, जब भी हम कहेंगे ना I2 तो उसका मीनिंग रहेगा 1001, और अगर हम कहेंगे I3 तो उसका मीनिंग रहेगा 100010001। डायगोनल के नंबर्स 1 है, राइट। नेक्स्ट, तो ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। नंबर 8 ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका डेफिनेशन ये है, जैसे अभी यहाँ पर क्या था कि हमें डायगोनल के ऊपर भी और नीचे भी 0 चाहिए था। अब नेक्स्ट क्या होगा कि डायगोनल के या तो ऊपर 0 होगा या तो नीचे 0 होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं 1025, तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, बट इट इज नॉट डायगोनल, ये डायगोनल नहीं है। क्यों डायगोनल नहीं है? बिकॉज डायगोनल के नीचे 0 नहीं है, बट इसके ऊपर 0 है। तो जो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल के या तो ऊपर या तो नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं, उसे कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स अबव और बिलो द मेन डायगोनल आर 0, देन इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर ऊपर के एलिमेंट्स 0 हुए तो हम उसे कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में कि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है तो इसमें ऊपर 0 है, करेक्ट। यहाँ पर ये डायगोनल हो गया, ये देखिए ऊपर के नंबर्स 0 है, तो इसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अगर डायगोनल के ऊपर 0 हुआ तो उसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, सर यहाँ पे अबव बोला है तो भी लोअर ट्रायंगुलर, बट नो, दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इसका उल्टा, अगर डायगोनल के नीचे के नंबर 0 हुए तो उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल दिस, ये डायगोनल है, इसके नीचे 0 है, यहाँ पर भी ये डायगोनल है, इसके नीचे 0 है, करेक्ट। तो इसलिए इसे हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर। ये लेस इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 8 जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई सम नहीं आता। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सभी जाग रहे हैं ना? आई होप नोबडी इज स्लीपिंग, हाँ। एंड डोंट वरी अबाउट राइटिंग इट, आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ। तो इसका समझना इंपॉर्टेंट है, इसको जो है समझना इंपॉर्टेंट है, नोट्स निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, टाइप नंबर 9, नाइन्थ टाइप, सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अभी जो हमारे 8 टाइप हुए, इन सभी 8 टाइप्स में आप सिर्फ ऑब्जर्व करके टाइप बोल सकते हो, बट सिंगुलर मैट्रिक्स में आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकाला और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, जैसे सपोज आपको मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स इज 2 1 6 3, ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। हम बोलते हैं ये मैट्रिक्स ए है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट है उसे आप लाइन कर दोगे लाइक दिस, 2 1 6 3, ये आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, इज इक्वल टू, कैलकुलेशंस करोगे क्या आएगा आंसर बताइए हमें, व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट? वेरी गुड, करेक्ट, इट विल बी 6 minus 6 that is equal to 0। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया? 0 आया। तो अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उस मैट्रिक्स को आप कहोगे सिंगुलर। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे, हाँ। तो मैट्रिक्स को अगर आपको चेक करना है वो सिंगुलर है या नहीं, तो उसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर आपको डिटर्मिनेंट 0 आया तो आपकी मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर मैट्रिक्स 2x2 में भी होती है और 3x3 में भी होती है। जैसे यहाँ पे हमने 3x3 एग्जाम्पल लिखा है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ बी, आपका आंसर 0 आएगा तो आप बोलोगे द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। एंड देन फाइनली द लास्ट टाइप नंबर 10, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। सिंपल। अब नल मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। तो इफ सिंपल ऑल द एलिमेंट्स आर 0, अगर सारे के सारे नंबर 0 है तो उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। सारे ही नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर के 0 है, वो चाहे रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, इसका जो नोटेशन होता है, द जीरो मैट्रिसेस आर ऑलवेज नोटेड बाय 0। फॉर एग्जाम्पल दिस, यू कैन सी दिस मैट्रिक्स, ये स्क्वायर है, सारे नंबर 0 है, नल मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर है, सारे नंबर 0 है, नल मैट्रिक्स। दिस इज रेक्टेंगुलर, therefore it is also a null matrix, ठीक है। So these are the 10 types of matrices। और भी कुछ 2 या 3 टाइप है,
वो आगे के सिलेबस में आएगी. एट दैट टाइम आई विल टेल यू. तो दीज आर द 10 मेजर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. इनको लर्न कीजिएगा, इनको याद रखिएगा. आई विल शेयर द पीडीएफ, डोंट वरी.